This is the story of a new era, achieved by sheer hard work and immaculate effort. The march of innumerable feet towards the objective of acquiring education and self-reliance has brought a wave of transformation to their lives. The stories of victory in the face of problems and hindrances are a panacea of change the Ekal movement has brought about. Millions of villagers and Vananchals, forest areas, were engulfed under the garb of illiteracy, even after India's independence. The colossus of illiteracy inspired the famous industrialist and philanthropist of Dhanbad district, Sri Madan Lalji Agarwal, to establish the Gram Shiksha Mandir for the upliftment of rural Indians and the people of Vananchals. Starting in 1989, from the Tundi village, a village of Dhanbad, as an incessant stream, the Gram Shiksha Mandir has assumed a gigantic shape in the shape of the Ekal movement today. In the last 25 years, the Ekal movement, through its Panchmukhi Shiksha, has not only educated the students, but has fashioned millions of rural people and Vanavasis independent and self-reliant. To assess the results and achievements of the Ekal movement achieved in the last 25 years and to formulate its future course of action, the Ekal movement organized Parinam Kumbh at its birthplace Dhanbad from the 1st to the 3rd of March 2015. By igniting the lamp, Parinam Kumbh of the Ekal movement was formally inaugurated. The transformation of the Vananchals by Panchmukhi Shiksha of the Ekal movement was depicted through pictures. Handicrafts of various provinces were also displayed specially on this occasion. The attraction was the production of the organic manure that has changed the face of villages drastically. जामताड़ा में मैं डीसी था, वहाँ भी करमाटाड़ जैसे रिमोट जगह में, जहाँ की जब प्रशासन की भी पहुँच नहीं थी, उस वक्त से ही जो एकल विद्यालय का कॉन्सेप्ट है उस पर वो आदिवासियों के बीच में जागरूकता और पढ़ाई लिखाई का वातावरण पैदा कर रहे हैं। बहुत ही सराहनीय प्रयास है मैं कहूँगा, और इस तरह के आयोजन हर एक राज्य और हर एक क्षेत्र में होते रहना चाहिए। On 1st March, when the residents of Dhanbad city experienced the Ekal tirade, thousands of people from its 3 places marched towards the golf ground in the form of a grand procession. On this occasion, besides the full-time volunteers, members of its samitis and the brethren from the towns of Jharkhand state, the rural and Vanavasis also joined in large numbers to be a part of it. The massive program of the Ekal movement got a novel direction when the massive manpower of the Ekal movement stirred the heart of Sri Ashok Singhal ji and Sadhvi Didi Ma Ritambara ji. Even dignitaries from within India and outside it felt proud to become a part of it. यह आने वाले 25 साल में इस देश के 4 लाख गांव जब जग जाएंगे तो कौन रोक लेगा हमको हमारे सपने का भारत बनाने से? और जिस दिन हमारे सपने का भारत बन जाएगा, कौन रोक लेगा हमको भारत को विश्वगुरु बनाने से? ये एकल अभियान का एक महान मंतव्य, हम स्वावलंबी होकर खड़े होंगे, हम देश को जागृत करेंगे, देश में जो अंधकार फैला है उस अंधकार को दूर करेंगे और बंधुओं इस भारत को फिर से विश्व गुरु के स्थान पर पुनर्प्रस्थापित करेंगे, करके ही रहेंगे। यही भारत भारत रहेगा, भारत को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। एकल के यहाँ इस कुंभ में सभी नर नारियों से मेरा एक निवेदन है, जिंदगी में बहुत काम कीजिएगा, शुभ करिएगा, लेकिन कुछ भी इसलिए मत करिएगा कि स्वर्ग में हमारी सीट पक्की हो जाए। इसलिए तुम जो काम कर रहे हो ये स्वर्ग जाने की योजना नहीं है, ये भारत में स्वर्ग उतार लेने का अभियान है। आपने स्वर्ग उतारना है। Later, the rural and urban workers offered floral tributes to the founding father of the Ekal movement, late Sri Madan Lalji Agarwal, at his residence at Jyoti Bhavan.
Sarsang Chalak Mananiya Mohan Rao Bhagwat ji and the ZTV chief Shri Subhas Chandra ji were also present on the occasion. एकल विद्यालय में जैसे कि अभी हमारी कल्पना, हमारा जो स्वप्न है, यही सपना देखेंगे कि जितने लोग वनवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोग पूरे सामर्थ्य हों, हर प्रकार से सामर्थ्य बने. Right from the inauguration, the relentless but unsung efforts of the Ekal movement were loudly acclaimed. The speeches delivered by the full-time volunteers of the Ekal movement filled the hearts with pride regarding the relentless and spirited hard work bestowed by the keen Ekal movement through its Panchmukhi Shiksha in the Vananchals and villages of India in the last 25 years. The voice of the experienced teachers who held the torch of primary education well lit assured the students of a bright future in the Ekal system of education. गांव का नाम कुलियारी बहाल है. हमारे गांव में एवं आसपास में कोई सरकारी विद्यालय नहीं होने के कारण पढ़ना कठिन होता था. सन 1998 के जुलाई माह में हमारे गांव में एकल विद्यालय प्रारंभ हुआ. 1998-2000 के बीच एकल में पढ़े विद्यार्थियों में से सभी 10वीं पास कर गए हैं. उसमें से 10 तो अभी कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहे हैं. अमर सिंह माझी स्पेशल पुलिस हो गया है. फार्मासिस्ट एवं इंडियन रिजर्व बटालियन की सेवा में पवित्र मोहन माझी ने अपने कर्तव्य निभा रहे हैं. आज के दिन एकल विद्यालय में पढ़े विद्यार्थी सरकारी नौकरी एवं किसान के काम में लगकर समाज को संभाल रहे हैं. आज हमें गर्व है कि जिस गांव में कोई विद्यालय नहीं था, आदिवासी गांव होने के बावजूद सरकार ने आजादी के 50 वर्ष बाद भी ध्यान नहीं दिया. एक अकेला एकल विद्यालय के कारण आज हमारे गांव से मात्र 15 वर्षों में पूरा गांव साक्षर हो गया है. The call for strong health education confirmed that the life of everyone is safe in the hands of the Ekal volunteers. मेरा कार्य क्षेत्र दुर्गम पहाड़ियाँ है. विद्यालय भ्रमण के समय मैंने देखा कि गर्भवती महिलाएं प्रसव के समय मर जाती है या बहुत बार मरे हुए बच्चों को जन्म देती है. हमने 15 से 40 वर्ष आयु सीमा की महिलाओं का रक्त परीक्षण कर अनीमिया पाई गई महिलाओं को पुनर्नवा मंडूर तथा त्रिफला खिलाना प्रारंभ किया. उन्हें हेगबी बताया कि वे हरी साग सब्जी उबाल कर खाए तथा उन्हें पकाने के लिए लोहे की कढ़ाई का प्रयोग करें. हमने पाया कि महिलाओं की दर्द व कमजोरी की शिकायत दर्द तेज से दूर होने लगी. शरीर का आलस्य दूर हो गया और वे काम में मन लगाने लगी. इस सफलता से प्रेरित होकर हमारे कार्य में तीव्र गति आ गई है. The experiences shared by the farmers coming from different provinces in the village development session proved that the only solution to India's farming problems lies in the use of organic manure and cattle rearing. जैविक खाद एवं पोषण वाटिका का काम तो गांवों के संपूर्ण विकास की अनोखी योजना है. मैंने 2006 में ही जैविक खाद का पेड़ लगाया था. उससे सब्जी की खेती करना प्रारंभ किया. उत्पादन अच्छा हुआ. पहले मेरे गांव में 4-6 लोग सब्जी की खेती करते थे, पर जब हम लोगों को फायदा होने लगा तो अन्य लोग भी धीरे धीरे सब्जी की खेती करना प्रारंभ कर दिए. हालांकि हम लोगों की जमीन बिल्कुल कंकरीली, पथरीली एवं पानी की अभाव है, पर गोबर की ताकत पर हम लोग खेती कर पाते हैं. आज हमारे गांव में सब्जी खेती एक उद्योग जैसा हो गया है. लगभग 100 बोरी सब्जी प्रतिदिन 30 से 40 मोटरसाइकिल पर गांव के नौजवान लड़के सब्जी बेचने जाते हैं. अतः उत्पादन में भी अधिक होता है एवं कीमत भी अधिक मिलती है. To make the rural folk and Vanavasis aware about their rights, about the governmental schemes, was the biggest achievement of the educational awareness session. हम जब एकल विद्यालय का काम करते करते गांव जाते थे तो अनेक समस्याएं गांव वाले लोग सुनाते थे. हम खुद से आरटीआई लिखने का प्रारंभ कर दिया. 650 आरटीआई आवेदन लिखा और जिसमें 550 आरटीआई आवेदन का जवाब मिला. 450
लोगों का काम हुआ और 90 से 95 लोगों को आरटीआई का प्रशिक्षण देके अपना समर्पित आरटीआई के लिए कार्यकर्ता बनाया। कई सरकारी अधिकारियों द्वारा मुझे पैसे लेकर अपनी सूचना को वापस लेने का भी आग्रह किया गया, पर मैंने ऐसा नहीं किया। कितनी बार तो लोगों ने सूचनाओं को रोकने के लिए मुझे जान मारने की धमकी दी। हम डरा नहीं और रुका भी नहीं। The experiences gained from the value-based education and life also provided eternal satisfaction to the people. सत्संग के प्रभाव से एक उग्रवादी आज कथाकार बन गया। पहले मैं नास्तिक विचारधारा वाला था। गांव में कोई सकारात्मक गतिविधि नहीं होने के कारण कुछ नवयुवक बेरोजगारी एवं दबाववश गलत रास्ता पकड़ लेते थे। मैं भी एमसीसी माओवादी उग्रवादी का सक्रिय सदस्य बन गया, परंतु मेरा गलत कार्य करने में मन नहीं लगता था। इसी बीच संगठन के कार्यकर्ता माननीय दिगंबर जी हमारे गांव में आए और बताए कि अयोध्या जी में रामायण निःशुल्क सिखाई जाती है। अयोध्या से प्रशिक्षण लेकर जब मैं घर में आया तो लगातार अपने गांव के बगल 4 गांवों में कथा कही और फिर हजारीबाग में रहकर कुछ दिन काम किया। 2014 में अवध भाग के पलिया अंचल के सूड़ा ग्राम में 5 दिवसीय कथा आयोजन में कथा व्यास के रूप में कथा मैं ही कह रहा था। उस गांव के 100 से ऊपर लोग शराब पीते थे। कथा के समापन में 100 लोगों ने संकल्प लिया कि हम शराब नहीं पिएंगे। अब उनमें से अधिकांश शराब नहीं पीते हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरा लक्ष्य है कि 1 लाख लोगों को व्यसन से मुक्ति कराऊं। The Parinam Kumbh of Ekal movement not only recognized the unrelenting efforts of the Ekal volunteers in providing Panchmukhi Shiksha, but it also reaffirmed the collective strength of the city groups and non-resident Indians associated with the Ekal movement. Sarsang Chalak Mananiya Mohan Rao Bhagwat ji also encouraged the volunteers of the Ekal movement through his blessings. देश के बारे में हम जो सोच रहे हैं, विश्व का गुरु भारत बनी है जो हम सोच रहे हैं, उम्मीद हमारी अपने प्रयासों पर है और उसके लिए योग्य बनना आवश्यक है। तो जैसे कार्य का हम पुनरावलोकन करेंगे, सीमावलोकन करेंगे, आगे के चरणों की योजना बनाएंगे, वैसे उन चरणों को सफल करने वाला कार्यकर्ता हम बने और हमारे संगठन के सब लोग वैसे बनते रहे। इसके लिए क्या क्या करना, ये आप सोचिए, उसका संकल्प कीजिए और उस काम में तो अभी से लग जाइए। The achievements shown at the Parinam Kumbh confirmed that the villages of India and Vananchals have moved ahead on the road to progress. The exodus of people fleeing the villages has stopped, and all the facilities from primary education to self-employment are available in the villages itself. The continuous Ekal journey is still on the move. Its aim is to reach 1 lakh villages. Come, let us move hand in hand with Ekal to build a strong India.